Hello everyone, welcome to Genic Education. So in the last lecture we have already discussed the ideal transformer and what is the deviation of practical transformer from that of an ideal transformer. As already I told you what is the two important things of the ideal transformer. The first one is the efficiency and the second one is voltage regulation. So in the practical transformer, efficiency and voltage regulation is different that of the ideal transformer. So the deviation we discussed in the last class and we have already started the model. Today in this class I am supposed to start the modeling of the practical transformer. So यहाँ पे क्या सारे चीज चेंजेस होता है आई विल बी डिस्कसिंग इन टूडेज क्लास एंड ऑल्सो सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. करेक्ट है. सो लेट मी डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. ये बहुत सिंपल चीज है, आई एग्री, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द engineering service prelim exam. Correct. So what is that? This is an ideal transformer. I don't know the rating, just this one is a ideal transformer. This is having two winding, the primary and the secondary. Correct है. So मान लो this is your HV winding and this is your LV winding. Correct. So the question is, what is the thickness of the winding of HV side and what is the thickness of winding of the LV side? So इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे किसका थिकनेस ज्यादा होगा, HV का या LV का? टेल मी व्हाट विल बी द थिकनेस. सो ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है. सो वी नो दैट सी सपोज द HV साइड वोल्टेज इज V1 and LV side voltage is V2 and the current through the primary is I1 and current through the secondary is I2. Correct. Now we know that the KVA is given by, see KVA means don't confuse sir, यहाँ पे आप नहीं पढ़ा है, नहीं, सिंपल ऑलरेडी AC बेसिक्स ऑफ AC नेटवर्क में ऑलरेडी आप एपरेंट पावर पढ़ चुके हैं. एपरेंट पावर इज गिवन बाय वोल्टेज इनटू करंट. करेक्ट है. सो KVA इज गिवन बाय V into I. So for primary side the KVA will be V1 I1 and for secondary side the KVA will be V2 I2. Correct. V2 I2. So whether this V1 I1 and V2 I2 will be same or different. See, this is first of all an ideal transformer, so the net input power must see. So the net output power must be equal to the input power. So power means both real and reactive power. So the apparent power must be same. So I can conclude that V1 I1 must be equal to V2 I2. Correct? Now come to the question. यहाँ पे अगर KVA आपको पता है तो I1 क्या हो जाएगा? This one will be KVA divided by V1 and I2 will be KVA divided by V2. Okay. But this one is a step down transformer, so V1 is greater than V2. V1 is greater than V2. So tell me what will be the relation between I1 and I2. So V1 अगर ज्यादा होगा I1 क्या होगा, कम होगा, and V2 अगर कम होगा I2 क्या होगा, ज्यादा होगा. I am comparing between I1 and I2. Numerator are same in both the cases, but the denominator are different. So I can conclude here I1 is less than I2. I2 ज्यादा होगा. Now tell me, I am using same type of conductor. My conducting material is same only. Okay. So what will be the thickness of, अगर thickness दोनों का अगर हम compare करेंगे, whose thickness will be more and whose thickness will be less? Tell me. See, you know current is directly proportional to the area of cross section. So इसको हम क्या लिखते हैं? Current is equal to J into A. What is J? J is the current density. Current density is given by I divided by A, ampere per meter square. इसका यूनिट क्या होगा? Ampere per meter square.
this is the unit of current density. J is the current density and it is a vector. Okay, it is a vector quantity, correct? Now so in between I1 and I2, what is the comparison? I2 is more than I1. Since I is directly proportional to A, I can conclude here A1 is less than A2. So the area of cross section of LV winding will be more as compared to area of cross section of HV winding. So this is the conclusion and ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है. सो HV वाइंडिंग मतलब वहां पे लेस करंट फ्लो होगा. लेस करंट फ्लो होगा मतलब वहां पे हम लेस द कंडक्टर हैविंग लेस थिकनेस हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट है. एंड इन द LV वाइंडिंग करंट ज्यादा होगा तो वहां पे जो वाइंडिंग मटेरियल होगा उसका थिकनेस ज्यादा होंगे, करेक्ट है. नाउ this is very basic thing, correct. Now let's proceed to the next section. So first of all, tell me what are the characteristics of the ideal transformer. So the first characteristic will be the ideal transformer having permeability is equal to infinity. So permeability अगर infinity है then magnetizing current will be 0, correct. Now second case, the second point, in case of ideal transformer the winding resistance is 0. Winding resistance R1 is the winding resistance of primary, R2 is the winding resistance of secondary. ये दोनों क्या होंगे? 0 होंगे. Okay. Now here I am considering the leakage flux also. Here leakage flux also plays an important vital role. So यहाँ पे x1 x2 will be 0. इन केस ऑफ प्रैक्टिकल आइडियल ट्रांसफार्मर लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा. लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा क्योंकि लीकेज फ्लक्स नहीं है. यहाँ पे कंप्लीटली द फ्लक्स क्रिएटेड इज ओनली द मेन फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स. सो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस 0 होगा. आई एम डीलिंग विद द आइडियल ट्रांसफार्मर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आयरन लॉस. क्या होगा? Iron loss will be 0. What is the iron loss? This is the loss which occurs in the core of the transformer, and of course core is a magnetic material, so the iron loss is due to the magnetic properties of the material. Okay. Now a fifth point, magnetization characteristic is linear. Okay, magnetization characteristic is linear. So can you tell me what is the magnetization characteristic? What do you mean by the magnetization characteristic? So अगर ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, दिस वन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का क्रिस्टल है. सो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा? डिफरेंट डाइपोल होंगे, ठीक है, डिफरेंट डाइपोल होंगे. डाइपोल मीन्स एक नॉर्थ पोल एंड अनदर साउथ पोल, ठीक है. डाइपोल सी यूनिपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है. यूनिपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ पोल होंगे एंड साउथ पोल होंगे, ठीक है. सो डाइपोल क्या होगा? इसका कुछ ओरिएंटेशन होगा. ओरिएंटेशन मीनिंग डायरेक्शन होगा. मान लो दिस वन इज द डायरेक्शन,
these are randomly present. ओके, सो ये डायरेक्शन किसको डिफाइन करेगा? ये डाइपोल के चलते आपका मैग्नेटिक मटेरियल एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, नेट फ्लक्स, फाइनेट नेट फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे. अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड है, द नेट फ्लक्स विल बी हाउ मच? इट विल बी जीरो. नेट फ्लक्स विल बी जीरो. सो अगर हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे इसको, ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा? ये सारे डाइपोल क्या होगा? दिस विल ट्राई टू अलाइन इन सेम डायरेक्शन. This will try to align in same direction. So at a particular time क्या होगा? सारे dipole will be aligned in this direction, and I will be getting a net flux is equal to phi max. I will be getting a net flux equal to phi max. Okay, because all this dipole oriented in a particular direction. Okay, now यहां पे एक चीज है, अगर हम इसको और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, ये जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटाइजिंग करंट को और भी अगर बढ़ाएंगे हम यहां पे, तो फाई मैक्स और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे कोर सैचुरेट हो चुका है. इसका मतलब क्या है? सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, तो यहां पे जो भी नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ही मैक्सिमम होगा. अगर हम मैग्नेटाइजेशन को और भी बढ़ाएंगे तो यहां पे ये नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि और ऑलरेडी ये पैरेलली अलाइंड हो चुके हैं, ठीक है, तो ये नहीं बढ़ने वाला है. करेक्ट, बिकॉज ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. सो ये मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट हो चुका होगा, इसीलिए अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाएंगे फिर भी ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक. सो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे? मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोवाइड करेंगे, एंड बाद में क्या मिलेगा आपको? फ्लक्स मिलेगा. ठीक है, सो यहां पे आइडियल ट्रांसफार्मर में कभी भी सैचुरेट नहीं होता है. एक आइडियल मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी सैचुरेट नहीं होता है. सो द कैरेक्टरिस्टिक इज जस्ट लीनियर वन. आप अगर करंट बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटाइजिंग करते जाएंगे, फ्लक्स बढ़ते जाएगा. दिस इज द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक. सो लेट मी रिपीट यू वंस अगेन व्हाट आई हैव डिस्कस सो फार. आई एम नाउ सी my prime objective of today's class is to model a practical transformer. Modeling means the equivalent circuit of the practical transformer. So already we discussed the equivalent circuit of an ideal transformer. वहां पे simple 2 windings होता था, and वहां पे characteristic क्या था? The permeability is infinity, magnetizing current is 0. R1 and R2. What is R1 and R2? These are the winding resistance of the primary and the secondary, and leakage flux are also 0. And third is the iron loss is 0, and fourth is iron loss is 0, and the fifth one is magnetization characteristic is linear one. This is called your magnetization characteristic. Okay, these are the assumptions for your ideal transformer, but now I have to deal with a practical transformer. Correct? So write down the next heading, characteristic of practical transformer. So can you tell me practically कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल हो, उसका परमेबिलिटी, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, नेवर. सो फर्स्ट वन इज, इसका मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा? परमेबिलिटी क्या होता है? 1000 to 2000 टाइम्स. सो अगर परमेबिलिटी इंफिनिटी नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगा? नॉन जीरो होंगे. द सेकेंड वन इज द वाइंडिंग रेसिस्टेंस आर non-zero.
winding resistance are non-zero, the leakage reactance are non-zero, iron loss non-zero, magnetization curve नॉन लिनियर। ठीक है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड क्या मॉडिफिकेशन आएगा मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू आइडियल ट्रांसफार्मर हम डिस्कस करेंगे। बट दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑर्डर टू मॉडल ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नाउ बिफोर सी, किसी भी मशीन्स का, किसी भी सिस्टम का अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करना हो तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए आप बताओ? मुझे किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट का इसका मॉडल करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? सी, ये सारे चीज आपको क्या देगा? ओनली द सर्किट एलिमेंट्स, दोज आर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, दिस आर द थिंग्स, एंड पावर फ्लो वहां पे कैसे होगा ये सब बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली एक अगर सर्किट है उसको ड्राइव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ईएमएफ, दैट इज पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, बट आई एम डीलिंग विद ए ट्रांसफार्मर, सो पोटेंशियल और ईएमएफ कहां पे जनरेट होगा? फ्रॉम द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। सो फॉर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, what are the induced EMF in the primary side and what is the induced EMF in the secondary side? उसका तो कुछ एक्सप्रेशन होगा, करेक्ट है? सो सी, फ्रॉम द फैराडेज सेकेंड लॉ वी नो दैट E is equal to minus ND phi by dt. ओके, दिस इज फैराडेज लॉ एंड माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? यू नो, it is from Lenz law. ओके, सो मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? पहले मुझे ईएमएफ चाहिए। सो सपोज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज N1, सपोज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज F, सो क्या होगा? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी विल बी E1 इज इक्वल टू 4.44 phi m F टाइम्स ऑफ N1. ओके, phi m F times of N1. This is the induced EMF. So ये क्या है? अल्टीमेटली ये RMS वोल्टेज है। दिस इज योर RMS वोल्टेज एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल योर मशीन्स इंक्लूडिंग DC मशीन्स आल्सो। DC मशीन्स में भी आर्मेचर के अराउंड, आर्मेचर के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन भी यही होगा, दैट इज आल्सो साइनोसॉइडल। लेकिन अगर कम्यूटेटर हम यूज कर देंगे देन द पोटेंशियल अक्रॉस द ब्रश विल बी DC, बट इनसाइड द आर्मेचर द पोटेंशियल, द EMF induced will be pure sinusoidal only. Okay, that will be sinusoidal only and the expression for RMS voltage will be same only. Okay, now this is the induced EMF in the primary side. Now E2 will be, this is the EMF induced in the secondary side, it will be 4.44 phi m F times of N2. This is the induced EMF in the secondary side, where N2 is the number of turns, where N2 is the number of turns. Okay, please write it, note it down, please note it down. सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा आपका, क्या है? सी,
E1 is given by 4.445 m F N1. So 4.445 m F1 को क्या लिख सकते हैं, फाई एम F को हम क्या लिख सकते हैं, E1 बाय N1. सिमिलरली नीचे से भी हम क्या लिख सकते हैं, 4.445 m F को हम क्या लिख सकते हैं, E2 बाय N2. So these two terms are equal, so I can write here E1 by N1 is equal to E2 by N2. इसको हम ये भी लिख सकते हैं E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to K. K क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो which I have already discussed in the last class. So ये जो रिलेशन है E1 by N1 is equal to E2 by N2, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, EMF पर टर्न्स, EMF पर टर्न्स is equal. This is the important statement. This is a very very important statement. EMF per turns is equal and E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to K. Okay, this is a very important relation. This one is a very important relation. So already I got the expression for induced EMF. So induced EMF अगर हमको मिल गया, then I can go for the equivalent circuit by considering each case one by one. Okay, so the first case is the permeability is infinity. Sorry, in this case permeability is finite one. So permeability अगर finite होगा तो क्या हो जाएगा, tell me, permeability अगर finite होगा, so what will be the expression, I'll be getting a magnetizing current. Previously magnetizing current क्या था, zero था for your ideal transformer, लेकिन ये केस में permeability zero नहीं है, sorry, permeability is finite, so magnetizing current will be a finite amount. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, okay, this is the magnetizing current, this is the magnetizing current. Okay, क्योंकि previously हमारे पास, see this is the supply side, this one is the primary side or the supply side, लेकिन यहाँ पे magnetizing current क्या होगा, यहाँ पे magnetizing current finite होगा and Xm is the magnetizing reactance. Write down, Xm is the magnetizing reactance. Xm is the magnetizing reactance and इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, I म्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, V1 by Xm. ओके, V1 by Xm. सपोज V1 is equal to, V1 का मैग्नीट्यूड एंगल इज 0, सो क्या हो जाएगा, मॉड V1 एंगल इज 0 एंड Xm का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, सो इट विल बी V1 by Xm एंगल इज माइनस 90 डिग्री. इसका मीनिंग क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज लैगिंग बाय द वोल्टेज बाय 90 डिग्री एज इट इज ए केस ऑफ इंडक्टर. ये आपका V1 है एंड ये क्या हो जाएगा, I म्यू. ओके, here the magnetizing current is lagging behind the voltage by 90 degree and ये magnetizing current क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, phi m. ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. करंट थ्रू ए कंडक्टर, करंट थ्रू ए कंडक्टर produces
magnetic field. Current through a conductor produces magnetic field. This is the statement. Write it down. Please note it down. So we considered the first point. The first point is where the magnetizing current is non-zero. Okay. And in the second point, what has been written? The iron loss component of current is not zero. Okay. इसका मीनिंग क्या है? आयरन लॉसेस हो रहा है. ओके, आयरन लॉसेस होगा, इसका मीनिंग क्या है? सी, आयरन लॉस कहां पे होता है? इन द कोर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर आयरन लॉसेस होगा. सो कोर में करंट अवेलेबल है. जस्ट अ मिनट. दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. This is the core of the transformer. Core is a magnetic material. Core, and it is a magnetic core is a magnetic material. Okay. So core में क्या प्रोड्यूस होता है? Tell me. Already I told you, core में हमेशा फ्लक्स सेटअप होगा. इसीलिए हम कोर यूज करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल कपलिंग सर्किट में हम अगर कोर यूज करेंगे देन सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी नियरली सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी अवेलेबल टू ऑल द वाइंडिंग व्हिच हैज बीन कनेक्टेड टू द कोर. ओके, व्हिच हैज बीन म्यूचुअली कपल्ड. ओके, सो कोर इज आल्सो मैग्नेटिक मटेरियल एंड कोर में फ्लक्स सेटअप होता है. So my question is that how much amount of flux set up in the core? How much amount of flux is set up in the core? Tell me. Already I told you the EMF equation is equal to E1 is equal to 4.44 pi m F times of N1. So tell me, 4.44 is a constant or variable? It is a constant. N1 number of turns आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन? नो, नेवर. इट इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. नाउ द थिंग्स लेफ्ट आर E1 is directly proportional to phi m into F. So what is phi m? Phi m is the flux. So flux कहाँ पे अवेलेबल होता है? कोर पे. So phi m is directly proportional to E1 by F. So E1 का मीनिंग क्या है? अगर हम यहां पे वाइंडिंग सी ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग एंड यहां पे हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, दैट इज V1. सो यहां पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई एम कंसिडरिंग अबाउट द आइडियल ट्रांसफार्मर. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी सेम एज V1, क्योंकि यहां पे KVL भी सेटिस्फाई होना चाहिए. करेक्ट है, यहां पे KVL भी सेटिस्फाइड होना चाहिए. सो E1 इज इक्वल टू V1. So I can write here V1 by F. So V1 is nothing but, suppose मान लो I'm applying 230 volt 50 hertz voltage source, 230 volt 50 hertz voltage source. तो क्या होगा? phi m is directly proportional to 230 by 50. Correct? So this is the flux available in the core of the transformer. This is the flux available in the core of the transformer. So यहाँ पे हम 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का रेटिंग है. इसका मीनिंग है these are the rated वैल्यू, रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी. सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी रेटेड वैल्यू होगा. क्या होगा? फ्लक्स will be rated one. Flux will be a rated one. Correct? This is called your rated flux. So transformer, see, rated flux में operate करेगा. Okay? And also you know that
Transformer is a constant flux device. Okay, transformer is a constant flux device. How you have to prove it? How you have to prove it? For no load condition as well as loaded condition, transformer will always operate at a constant flux. ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, उसका बहुत ही कम वेरिएशन होता है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेरिएशन. सो वी ऑलवेज कंसिडर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस. सो अगर कांस्टेंट फ्लक्स है तो आयरन लॉसेस जो होगा, ऑलरेडी आयरन लॉस कहां पे होता है? मैग्नेटिक मटेरियल में. मैग्नेटिक मटेरियल में जो आयरन लॉसेस हो रहा है उसका कॉज क्या है? दिस फ्लक्स, दिस वर्किंग फ्लक्स. एंड वर्किंग फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, वर्किंग फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, आयरन लॉस क्या होगा? सी लॉजिक समझो, कोर लॉस कहां पे होता है? आयरन लॉस कहां पे होता है? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. आयरन लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस फ्लक्स. एंड अगर ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स है, इसका मीनिंग क्या होगा? आयरन लॉस क्या होगा? वेरिएबल, राइट? इट विल बी कांस्टेंट. आयरन लॉस क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा. सो हम हमेशा आयरन से कोई भी लॉसेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर. लॉसेस को हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर के थ्रू डिनोट करते हैं. एम आई करेक्ट? लॉसेस हमेशा, ओमिक लॉसेस हमेशा कहां पे होता है? रेसिस्टेंस पे होगा. ओमिक लॉसेस हमेशा रेसिस्टेंस पे होगा. इंडक्टर एंड कैपेसिटर में हमेशा आइदर दे विल कंज्यूम रिएक्टिव पावर और दे विल डिलीवर रिएक्टिव पावर. क्योंकि हमेशा you already know from the basic of network theory, the voltage and current, the phase difference between voltage and current in a inductor is how much? 90 degree. अगर 90 degree होगा then we know that real power is given by P into VI cos phi. सो फाई अगर 90 होगा, ये क्या हो जाएगा? ये 0 होगा. सिमिलरली फॉर योर कैपेसिटर, यहां पे करंट लीड करता है एंड यहां पे भी एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री. सो P इज गिवन बाय VI cos phi. सो यहां पे भी cos phi इज 90. सो आई कैन कैलकुलेट P is equal to 0. So हमेशा इंडक्टर कैपेसिटर दे only consume or deliver the reactive power. They will never consume the real power. Always which element consume the real power? That is resistor. Resistor never consume the real reactive power. रेसिस्टर का रिएक्टिव पावर से कोई भी लिंक नहीं होता है. ठीक है, हमेशा रिएक्टिव पावर का रिलेशन इंडक्टर कैपेसिटर के साथ होता है एंड रेसिस्टर का हमेशा रियल पावर के साथ होता है. रियल पावर को हम क्या बोलते हैं? वाटफुल. वाटलेस. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? वाटलेस. करेक्ट. सो अल्टीमेटली हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आयरन लॉसेस को. आयरन लॉसेस कहां पे होता है? इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में हमेशा फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सो फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा, आयरन लॉस क्या होगा? इट विल बी कांस्टेंट. सो कांस्टेंट होगा. करेक्ट. सो हमको क्या करना है? आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करना है. सो आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेल मी. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. सी ये ओनली फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर करने के बाद. ठीक है, ये है ना.
सो सेकंड पॉइंट का अगर कंसिडर करेंगे इन द नो लोड कंडीशन, दिस विल बी द केस. This is the magnetizing current, this is the iron loss component and this is the no load current. एंड ये हो जाएगा आपका XM एंड ये हो जाएगा आपका R0. ओके, सो दिस इज द नो लोड करंट. नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस विल बी I म्यू प्लस IW. राइट डाउन. I म्यू क्या होता है? I म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग current. IW is the iron loss component. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? संट ब्रांच और नो लोड ब्रांच. लिख लो, इसको हम क्या बोलेंगे? संट ब्रांच और नो लोड ब्रांच. संट ब्रांच और नो लोड ब्रांच. प्लीज नोट इट डाउन. सो आई म्यू क्या होगा? हमेशा इट विल बी 4 to 5% ऑफ रेटेड करंट. एंड IW क्या होगा? 1% ऑफ रेटेड करंट. सो यहां पे I म्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू I म्यू इज ग्रेटर देन IW. ओके, I म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग करंट. सो I नॉट क्या होगा? I नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ फुल लोड करंट. I naught is nothing but your no load current is approximately 5% of the full load current. Okay, this is the 5% of the full load current. नाउ नेक्स्ट, इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. फेजर एट नो लोड. सो पहले क्या आएगा आपका? वोल्टेज V1. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा विच इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. एंड यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग करंट. एंड ये क्या होगा? आपका वर्किंग फ्लक्स होगा. ओके, एंड ऑलरेडी वी डिस्कस दैट मैग्नेटाइजिंग नो लोड आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट भी आएगा. ओके, सो आयरन लॉस कंपोनेंट भी आ गया. एंड ये दोनों का रिजल्टेंट, ये मान लो आपका, जस्ट ए मिनट,
ये है आई म्यू एंड ये है फाई। आई नॉट। सो नो लोड कंपोनेंट है, क्या है? नो लोड कंपोनेंट। नो लोड कंडीशन में व्हाट विल बी द पावर फैक्टर एंगल? सो पावर फैक्टर एंगल इज नथिंग बट दिस इज द एंगल बिटवीन V एंड I। सो यहां पे नो लोड वोल्टेज क्या है? नो लोड वोल्टेज इज दिस वन, नो लोड वोल्टेज इज V1, नो लोड करंट इज I0। सो नो लोड एंगल, नो लोड पावर फैक्टर एंगल विल बी दिस मच, फाई नॉट। सो फाई नॉट का वैल्यू नॉर्मली क्या होता है? 70 to 75 डिग्री। एंड नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर cos phi naught is equal to 0.2 लैगिंग। नॉर्मली इतना ही होता है। दिस इज द नो लोड पावर फैक्टर। ओके, दिस इज द नो लोड पावर फैक्टर। अच्छा, now the two important things. See, in the no load equivalent circuit, what I have discussed, this is the iron loss component, this is the magnetizing component. ये है आपका R नट, ये है आपका XM, ये I म्यू है एंड ये आपका IW है, ये क्या है? I नट है। So my question is that which one is true? R naught is greater than XM, R naught is less than XM, R naught is equal to XM? None of these. Suppose it is excited by voltage V1. You have to choose any one of them. And also this type of question has already been asked in your engineering service prelim exam. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। सो विच वन इज करेक्ट? आउट ऑफ ऑप्शन A, B, C, D यू हैव टू चूज इट एंड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देना है, देन ओनली आई कैन वेरीफाई योर आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नो लोड ब्रांच, दिस इज ऑल अबाउट योर नो लोड ब्रांच। ठीक है, नाउ come to operation of transformer at load condition. So load condition में क्या होगा? Let's see. Load condition. This is the core of the transformer. And यहाँ पे क्या होगा? वाइंडिंग होंगे। एंड यहां पे लोड होगा। ठीक है, सी पहले अगर एक्साइट करेंगे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दैट इज फाई एम विल बी प्रोड्यूस्ड, करेक्ट। बट व्हेन लोड इज कनेक्टेड, व्हेन लोड विल बी कनेक्टेड, द EMF induced direction will be such that it should obey the Lenz law, and we know according to Lenz law it will oppose the cause. So what is the cause in this case? What is the cause of production of EMF induced EMF here? The cause of production is variation of the main field flux, variation of the flux, this working flux. So अगर phi m वेरी हो रहा है, so EMF is inducing. So Lenz law के अकॉर्डिंग क्या होगा? It will oppose the cause, means ये अगर इंक्रीज फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लो phi m इंक्रीज कर रहा है, इसका मीनिंग इसको क्या करेगा? ये क्या करेगा? इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट। सो यहां पे हम बना सकते हैं इट विल बी phi 2, इट विल बी phi 2, क्योंकि ये अपोज करेगा अल्टीमेटली। सो phi m को अगर अपोज करेगा, सो नेट फ्लक्स विल बी हाउ मच? phi m माइनस phi 2, phi m माइनस phi 2। तो यहां पे रिड्यूस हो गया। एम आई करेक्ट और नॉट? नेट फ्लक्स विल बी रिड्यूस्ड और नॉट? Tell me, net flux will be reduced or not? Tell me. Yes, obviously reduced.
मान लो पहले नेट फ्लक्स था φ1, अभी क्या हो गया, φ1 इज इक्वल टू φm था, एंड अभी क्या हो गया, φ1 इज इक्वल टू φm माइनस φ2। ओके, सो अभी क्या होगा, लेट्स सी, वी नो द EMF इक्वेशन, EMF इक्वेशन इज इक्वल टू 4.44 φm f टाइम्स ऑफ n1। यहां पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सारे चीज कांस्टेंट है एक्सेप्ट φm। ठीक है, अभी तक सी पहले हम बस डिस्कस कर चुके थे कि फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट विदाउट लॉजिक, बट नाउ try to find the logic why transformer flux is constant, inside the transformer flux is constant। so second केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, पहले ये φ1 था, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी φm माइनस φ2, φm माइनस φ2। सी अनदर थिंग यू कैन चेक हियर, अगर फ्लक्स कम हो जाएगा, φm माइनस φ2 अगर कम हो जाएगा, देन ऑब्वियसली द इंड्यूस्ड EMF E1 विल बी हाउ मच, इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स, E1 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर E1 रिड्यूस करेगा देन सी यहां पे सप्लाई वोल्टेज फिक्स्ड है V1, अगर E1 रिड्यूस कर गया देन ऑब्वियसली सी यहां पे E1 अगर रिड्यूस कर गया ऑब्वियसली इट विल ड्रॉ मोर अमाउंट ऑफ करंट, सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर आएगा देन दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस और नॉट, यस इट विल प्रोड्यूस। सो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू φ2 का इक्विवेलेंट फ्लक्स। आई अगर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है φ2 का इक्विवेलेंट फ्लक्स ही प्रोड्यूस करेगा। सो नेट फ्लक्स दिस φ2 and the flux due to this current I1 will nullify to each other, so the net flux inside the transformer will remains constant। See the logic, at load condition में क्या होगा, it will oppose, so net flux क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा। net flux अगर reduce हो गया, EMF induce क्या हो जाएगा, ये सब होने के लिए 5 मिनट्स नहीं लगता है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। सो 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 20 मिली सेकेंड, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है, नहीं तो क्या होता, ये सब बल्ब ब्लिंक करता, क्योंकि फ्लक्स रिड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस रिड्यूस हुआ, यहाँ पे भी रिड्यूस होगा तो बल्ब ब्लिंक करता। लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत ही कम है, टाइम पीरियड बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। ठीक है, सो यू कैनट इमेजिन हाउ इट इज हैपनिंग, वेरी इंस्टेंटेनियस in the time period of 20 millisecond only everything happens। so अगर EMF induce in the primary reduce हो गया, immediately क्या होगा, it will draw extra amount of current, करेगा कि नहीं, obviously करेगा, क्योंकि potential difference अगर हो गया obviously it will draw the current in order to maintain the potential difference same। ये है आपका कंडीशन। ये अगर मान लो आपका 10 वोल्ट है, ये अगर 8 वोल्ट है, देन करंट विल ड्रॉन और नॉट, यस करंट विल ड्रॉन इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ओके, सो यहां पे करंट ड्रॉ होगा एंड ये करंट क्या होगा, इसको नॉलिफाई करेगा, φ2 को नॉलिफाई करेगा। सो अल्टीमेटली आपके पास ओनली मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड दैट्स व्हाई योर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ओके, प्लीज राइट इट डाउन, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। This is the condition for your no load current, this is the load condition में आपका यही आता है। ठीक है, लोड कंडीशन में यही आएगा। now this is the second point that is already over। now let's discuss the winding resistance। winding resistance means this is the primary side which is magnetically coupled with the secondary, and this is the secondary side।
इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2, and the current is I1 and the current is I2. And already I discussed in the previous class the leakage reactance X1 and X2. ये कहाँ से आएगा, कैसे यूज करेंगे, already I have discussed. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंस को भी ऐड करेंगे. X2 X1 एंड यहां पे वोल्टेज क्या होगा, V1. ठीक है, ओके. सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर, करेक्ट. सो यहां पे हम इंपॉर्टेंट चीज क्या किए, हम आइडियल ट्रांसफार्मर में जो सब एजम्पशंस था और प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, वो सारे पॉइंट को हम वन बाय वन उसको नोट किए एंड वी ट्राई टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. लेकिन यहाँ पे नो लोड ब्रांच नहीं है, वी शुड इंक्लूड द नो लोड ब्रांच आल्सो. ठीक है. सो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज okay, this is the equivalent circuit of the transformer IW and this one is I mu. Please note it down. Please note it down. So, tell me what is the copper loss in the primary. Don't say ki sir IW square RW. This is not the copper loss. This is the iron loss. Okay. So what is the copper loss in the primary? What is the copper loss in the secondary? Secondary side. I2 square R2. ठीक है, I2 square R2. So net copper loss क्या होगा? Net loss will be I2 square R2. सो अगर हम इसको R1, अगर हम सेकेंडरी साइड को भी विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी अगर करेंगे, सी विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी साइड में करंट क्या है, ऑलरेडी I1 स्क्वायर है इनटू R1 इज द प्राइमरी साइड रेसिस्टेंस होता है ना, करेक्ट, प्लस I1 स्क्वायर into R2 डैश. I1 क्या है, प्राइमरी साइड करंट, R1 क्या है, प्राइमरी साइड रेसिस्टेंस, R2 डैश क्या है,
दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी. राइट डाउन. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ primary resistance of secondary with respect to primary. Okay, this is R2 dash. So net losses हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे हम उसको प्राइमरी साइड में रेफर करें, सेकेंडरी साइड में रेफर करें, कुछ भी करें, हमको कांस्टेंट मिलना चाहिए. यस, कांस्टेंट मिलना चाहिए. प्रैक्टिकली ये सब रेफरिंग नहीं होता है, नहीं होता है. ये फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी, अगर हम एंटर साइड को एक प्राइमरी में करेंगे और एंटर साइड को सेकेंडरी में करेंगे तब क्या होगा, आप एक ही केवीएल इक्वेशन मिलेगा. अदरवाइज इन दिस केस आपके पास 2 केवीएल इक्वेशन है. यहां पे आपके पास 2 केवीएल इक्वेशन है फॉर द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड. तो इतना लेंथी कौन करेगा, इतना मैथमेटिकल एनालिसिस कौन करेगा. सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एनालिसिस व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट एंटायर सर्किट इन द प्राइमरी और एंटायर सर्किट इन द सेकेंडरी साइड. करेक्ट. सो यहां पे हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे रेसिस्टेंस को, लेकिन क्या होना चाहिए, लॉसेस मस्ट बी कांस्टेंट. लॉसेस मस्ट बी कांस्टेंट, देन ओनली इट विल बी possible, it will be possible. So क्या होगा, R2 dash will be how much, R2 dash will be R2 by K square. K square क्या है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं. ठीक है. अगर विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी अगर हम लेंगे, so it will be I2 square R2 plus I2 square into R1 dash. R1 dash is equal to R1 dash is equal to K square into R1. Okay, R1 dash is equal to K square into R1. Now R01 which is the equivalent resistance with respect to primary, ये क्या होगा, R1 plus R2 dash. R02 equivalent resistance of the transformer with respect to secondary, R2 plus R1 dash. Okay, R01 R02. Okay, but percentage resistance of the transformer is constant. Not note it down. Percentage resistance of the transformer is constant with respect to primary or with respect to secondary, it is remains same. And percentage resistance is nothing but equal to percentage full load copper loss. Percentage full load copper loss. ठीक है. This is all about your equivalent circuit. In the next class we'll discuss some numericals and we'll proceed to the losses of the transformer. So thank you all of you for watching this video. And another important thing कि आप लोग जेनिक लाइव आप इंस्टॉल कर सकते हैं, which is available in the Play Store. And वहीं से आप उड़ान का कोर्स, जितने भी हमारे कोर्सेस है जेनिक का, सब कुछ परचेज कर सकते हैं. एंड फॉर एसएससी जेई के प्रिपरेशन के लिए जेनिक जेई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहीं पे टेक्निकल एंड नॉन टेक वीडियो सारे अवेलेबल है, इसको आप यूज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.